Hello दोस्तों, once again very welcome back to the new video and the topic for today's video is LD College of Engineering, Lal Bhai Dalpat Bhai College of Engineering. This is the full form of LD College of Engineering and सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा ओवरव्यू से, ठीक है। तो देखिए, मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे आपके सवाल आए थे कि सर आप तो खुद LD College of Engineering से है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे मेरा एक क्विक इंट्रो दे दूँ कि आई हैव डन माई इंजीनियरिंग IT इंजीनियरिंग फ्रॉम द LD College of Engineering फ्रॉम द बैच 2018 टू 2022, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया था, मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम द ईयर 2018 टू 22। तो मुझे काफ़ी आपकी साइड से सवाल आते हैं कि सर प्लीज़ लेट अस नो कि व्हाट आर द फ्लोज, व्हाट आर द फ्यूचर इफ वी आर गोइंग टू परस्यू द इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन द LD College of Engineering. So that's why I have made this entire video, and in the entire video I am going to tell you what is the overview. And I know its whiteboard is not visible, but this is for my reference. You know, you do not need to worry about it. Okay, first of all I am going to start with the overview, that how is the college environment and what is the overall college information. Then I will bring you the information of the placement, then study and the facilities. These are the four major points I am going to cover. So now first point first, and let me start with the overview. तो देखिए, ओवरव्यू में मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द एंटायर गुजरात, विच एस्टैब्लिश इन द ईयर 1948 इन द प्राइम लोकेशन एट द अहमदाबाद, एंड विच इज़ जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी, नवरंगपुरा के अंदर यहाँ पे आता है। और यहाँ पे सबसे पुरानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, 1948 में ये स्टार्ट हुई थी, यानी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके जस्ट एक साल बाद, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट आई फाउंड out about Delhi College of Engineering, and which is the oldest college in the entire Gujarat. So this is the best point. Now if I talk more about the Delhi College of Engineering, that before 2 years it was providing only 14 number of engineering branch, but previous year on the last year it has introduced two new branch. First is the AI and data science, and second is the robotics and automation. So they have increased the number of engineering seats by 120 on the previous year, and now currently they are having more than 1400 seats as per the AICTE. And if we include the EWS category, then the number of seats is around 1600 and more than 1600. So I might consider that this is we kind of say that this is a quite minus point, that if an engineering college is offering so many wide range of seats, like let's say that if we combine computer plus IT plus AI and data science, they are offering 500 plus seats. Okay, so at the end it is not good ki there are limited number of companies is coming, but there are number of students, it's so much high, so you need so much high competition. Okay, so this is my point of view, but everyone is having their own point of view. Okay, so I have covered the overview, and in that I talk about the basic information about Delhi College of Engineering, plus I have covered the engineering seats. Apart from it, there are so much good branches are there, like mechanical, civil, electrical, automobile, then EC engineering, IT engineering, then computer engineering. But make sure that you remember computer science engineering is not there in the LD College of Engineering. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि LD College of Engineering में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है, बट नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इन LD College of Engineering you do not have option to select computer science engineering, because they are offering only two courses. First is the computer engineering and second is the IT engineering, ठीक है. So this is all the overview about LD College of Engineering. If I talk about the facilities, then you will find the mess in the campus. There are more than three number of mess is available. There is also a canteen which is active for mostly all the daytime. There is also tea post inside the campus, so this is a good thing. As a students you will get so many facilities. Okay, apart from it, they are providing boys hostel and girls hostel. Fees are really less, because as per you already knew, it's a government engineering college, so fees is really less. Okay, so this is the facilities. If I talk about the transportation, you will not have transportation in the provided by the college authority. Okay, because the thing is, outside of the campus of the LD College of Engineering, you will find the option for AMTS, BRTS. Okay, so city transport is really wide, means so much people of LD College of Engineering is using this facility, because it's just outside of the campus. Okay, and if you travel by the bus, then you will have nearest ST pickup point is the Nehru Nagar or Jhansi Ki Rani ST pickup point. Okay, which is just around 2 or 3 kilometers far from the campus. So this is also a good, we can say it's at the prime location. Okay, now second most important point which I am going to bring is the placement. See, if I truly be honest with you, LD College of Engineering में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है. और अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई थी कॉलेज के सोर्स से कि इस बार मोर देन 900 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में. तो ये भी बहुत अच्छी बात है. बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखिए, यहाँ पे
एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सबसे पहले अगर मेरे प्लेसमेंट की जर्नी याद करूँ तो होता क्या है कि जुलाई महीने अगस्त महीने से यहाँ पे आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। अगस्त में सबसे पहले कंप्यूटर IT EC यहाँ पे 90% स्टूडेंट कवर हो जाते हैं विदिन 2 और 3 मंथ्स, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को 10 लाख का मिलता है, 12 लाख का भी देखा है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑन एन एवरेज 6 LPA का मिलता है, ठीक है। और स्टार्टिंग होता है 3.5 LPA से लेके और ये अब जाता है अराउंड 12 LPA के समथिंग, so this is also a good thing, but this is the data of the computer IT and EC. Okay, now after 2 or 3 months the placement record and the placement speed of the computer IT and EC is going to slight decrease, यानी कि मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है जो कंप्यूटर IT EC में रहते हैं, और उसके बाद एक हायर जंप रहता है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और बाकी सारी ब्रांच के अंदर। यहाँ पे रिलायंस, अदानी, टोरेंट, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है विच आर कवरिंग ऑल द फील्ड्स लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और रिलायंस का पैकेज भी बहुत अच्छा यहाँ पे ऑफर होता है, समथिंग अराउंड 7.5 LPA विच इज़ ऑल्सो वंडरफुल थिंग। तो ओवरऑल अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आउट ऑफ दैम मोस्टली 90% से भी ज़्यादा प्लेसमेंट्स यहाँ पे होते हैं। अगर हम कोई एक एवरेज नंबर निकालने की बात करें तो विच इज़ अराउंड समथिंग लाइक 5.5 LPA, बट ये सही है एक तरह से आप देखें बिकॉज फीस इज़ ओनली 1500 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। आप एक साल में 1500 रुपये पे कर रहे हो, 4 साल का ये कितना होगा 6000, ओके, कि आप 4 साल में 6000 पे कर रहे हो। आप इसमें इंक्लूड कीजिए कि आपको एक बाइक ले रहे, मतलब एक्टिवा ले रहे, आप अपना खुद का लैपटॉप ले रहे, बुक्स ले रहे, तो ये सब कुछ आपका इंजीनियरिंग 4 साल समथिंग अराउंड 60,000 से लेकर 90,000 में पड़ रहा है, और उसके बाद आपको 5 लाख की जॉब मिल रही है, 5.5 की जॉब मिल रही है, 6 लाख की जॉब मिल रही है। सो विच इज़ वंडरफुल थिंग्स, नो नीड टू बी बॉदर अबाउट इट, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। सो दिस इज द पॉइंट आई हैव टॉक अबाउट द प्लेसमेंट। नाउ द पॉइंट नंबर 3 that I want to bring, and that is the how is the study culture over there, okay। First of all, let me talk about the faculties. Wonderful faculties are there in the LD College of Engineering. Most of them are having master's degree and many of them are having PhD degree as well, okay। You will find HOD, then assistant professor, then professor, and so many other posts are there in the hierarchy of the faculties, okay। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सारे जो प्रोफेसर्स रहते हैं बहुत अच्छी तरह से आपको गाइडेंस करते हैं, हेल्प करते हैं, बट यहाँ पे माइनस पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है तो अटेंडेंस ऑन पेपर 75% बोल रहे हैं, बट यहाँ पे इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। जब मैं पढ़ रहा था तब की बात है, अब पता नहीं चेंज होगा। सो दैट्स वाई वो टाइम सेइंग दैट कि जब मैं पढ़ रहा था तब यहाँ पे 75% अटेंडेंस नहीं थी, बट जहाँ तक मुझे पता है कि पिछले कुछ सालों से ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, अब यहाँ पे 75% आपकी अटेंडेंस कंपलसरी हो चुकी है। नाउ लेट मी अगेन ब्रिंग टू द पॉइंट, एंड दैट इज़ द स्टडी। तो स्टडी कल्चर बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे आपको जात से, अपने आप से सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई आने वाला नहीं है कि भाई तू ये सीख ले, सी लैंग्वेज स्टार्ट कर, जावा स्टार्ट कर, ये प्रोजेक्ट बना, यहाँ पे इंटर्नशिप कर। सब कुछ आपको अपने आप से रिसर्च करना होगा, अपने आप से ढूंढना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आप अपने आप को ग्रूम कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई स्टडी की। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हम कह सकते हैं, बिकॉज एज पर यू नो दैट इट्स अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, बट हाल ही में मुझे पता चला है कि काफ़ी सारे बिल्डिंग्स का यहाँ पे रिनोवेशन होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 1948 से कैंपस एक्टिव है, ठीक है। तो तब से यहाँ पे वही सारा मतलब रिनोवेशन इतना अच्छा हुआ नहीं है, सिर्फ पेंटिंग ही हुआ है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे वीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ में आपको क्रिकेट का बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, एक सिविल लॉन करके जगह है, इलेक्ट्रिकल लॉन करके जगह है, कि जहाँ पे बहुत बड़ी स्पेस है और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा कॉलेज में आपको टी पोस्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। पार्किंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कैंपस भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन द एंटायर अहमदाबाद। सो या आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स रिगार्डिंग LD College of Engineering. I hope I am not leaving any point or left any point, but if still you have some doubts on LD College of Engineering, then feel free to put it in the comment section. At the end, let me summarize entire video for you, and that is कि अगर आपको यहाँ पे LD College of Engineering के अंदर एडमिशन मिल रहा है और वो भी आपको जो ब्रांच में चाहिए था वो, तो फिर आप डेफिनेटली ले सकते हो, बट मेक श्योर दैट कि आप सेल्फ स्टडी के साथ
जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, मतलब अपने आप से ही अपने आप को मोटिवेट करना होगा। यहाँ पे कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आपने भाई ये किया कि नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आपको यही बोलेंगे कि हमें इतना चाहिए, कुछ भी करके दे। फिर आप यहाँ कहीं इंटरनेट से उठाओ, चैट जीपीटी से लिख के आओ, कॉपी पेस्ट करके लाओ, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे खुद से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, और ये एक मतलब आपको एक कंसिडर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा तो एवरीथिंग इज गुड इन इफ आई टॉक अबाउट द एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऑलराइट। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have still any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.